Yes. Okay. So, welcome everyone to this Zoom video conference with our expert, Mr. Nikhil Desai, on the various aspects of as to how you can make best use of time and how you can promote yourself and your trade during this COVID. As the Prime Minister, in fact, said when the lockdown started, that although COVID is a challenge, but we should take it as an opportunity. If we take it as a challenge, we will not be able to achieve anything. But if we take it as an opportunity, then perhaps we can benefit and improve ourselves. I personally feel that the human resource is the most important asset in any society, in any organization. It is the men which matter. It is the men who promote or demote the organization. If they run it effectively, the organization is promoted. If they don't, very soon we have seen big companies, going out of space. So it is very important that the human beings, they remain evolved, they remain committed, they remain motivated for the organizations they work for. Their aim should be to deliver the best in the most cost-effective manner. With this in view, our GJEPC Council has arranged this program, and I am thankful to Mr. Nikhil Desai, who is an expert, motivational and trainer speaker. He has done his master's in business administration in the US. He has worked there. He has a vast experience as to how the companies can promote themselves, how they can improve their manpower productivity. He has almost 30 years of experience, if I am right. With his rich experience, I think we all will be benefited in listening to his expert views as to how we can make use of this time and how we can improve ourselves, not only ourselves, but also our enterprises. I would request Mr. Nikhil to deliberate in Hindi and English, as हमारे बहुत सारे जो members हैं वो कुछ क्योंकि नॉर्थ से हम हैं तो इंग्लिश नहीं इतनी अच्छी समझ पाएंगे, तो आप बीच बीच में थोड़ा हिंदी भी बोल देंगे तो अच्छा रहेगा. और माय मेंबर्स, एक रिक्वेस्ट है उनसे कि although Prime Minister is scheduled to address the nation at 4 o'clock, we all are very keen to listen to what he says. He is our Prime Minister. But my small request is कि प्राइम मिनिस्टर जो भी बोलेंगे वो सारे टीवी चैनल्स उसको रिप्ले करते रहेंगे. Whereas the opportunity which we have got today to listen to Mr. Desai will be gone. इसका थोड़ा दिक्कत हो सकती है. इसलिए my personal request would be to please be attentive here and listen to him. And PM वाला जो है हम लोग 10-15 मिनट के बाद उनका होगा, जब एड्रेस खत्म होगा, हमारा प्रोग्राम खत्म होगा, we can also tune in and listen to that. So with those words, I would also request our regional chairman Shri Ashok Sethji, who has joined us, whose idea it was to have this kind of a program, to invite Mr. Desai and listen to him. So Seth sir, you would like to welcome Mr. Desai? Sir, Nikhil Bhai Desai and friends, I welcome you all. And आज जैसा कि ये पीरियड हमारा कोविड से पूरे वर्ल्ड में बिजनेस इंटरनेशनल और नेशनल सब जो चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, लेकिन हम एक्सेप्ट करना हमें सिखा दिया है. नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई जूम मीटिंगें हम करने लग पड़े हैं. तो आज जीजेपीसी ने, रीजनल ऑफिस ने, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मुंबई के सहयोग से जो ये वेबिनार आप लोगों के लिए आयोजित किया है, इसमें जीजेपीसी और मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस महामारी के समय में आप अपने आप को और अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं. श्री निखिल देसाई सेंटर फॉर एक्सीलेंस के डायरेक्टर हैं और इंटरनेशनल स्पीकर, मोटिवेटर, ट्रेनर हैं. आप लोगों ने
अपने पर्सनल और बिजनेस लाइफ को अच्छी तरह से इनको चलाने के लिए गाइड करते रहे आज तक। ये अपनी बातों को बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से आप लोगों को बताते हैं। आपने पिछले 27 सालों में दुनिया के 56 शहरों में अपनी प्रेजेंटेशन से 10 लाख लोगों को लाभ पहुंचाया है। आपने यूएसए से एमबीए किया, वहां फिर आपने अपने कॉलेज में फर्स्ट भी आए थे। इसके बाद आपने न्यूयॉर्क में अपना काम किया, उसके बाद आपने इंडिया लौटने का मन बनाया और टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल फील्ड में अपनी पकड़ बनाई। 1991 में निखिल जी को दी सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की, जिसके सीईओ मैगजीन और एचआरडी ट्रेनिंग कंपनी ऑफ द ईयर के रूप में आपको सम्मानित किया गया। निखिल देसाई जी को वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस में भी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। आज आशा करता हूँ जितने भी हमारे विजिटर हैं, जितने भी हमारे लिसनर हैं, आप आपकी जो ये मधुर वाणी है इसका लाभ उठाएंगे। बिजनेस में आप जो अभी तक आपको ये लॉस पहुंच रहा है उसको आप उसको कैसे पिकअप कर पाएंगे, इस बारे में हमारे निखिल भाई देसाई आपको सबको गाइड करेंगे। निखिल भाई देसाई। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, नमस्कार, आदाब, कैसे हो आप लोग? आई एम श्योर दैट एक 45 to 50 minutes आप हमारे साथ रहेंगे. We will be together and all of us will pick one idea that we can use in our personal or professional life. I am a very interactive person. आप चैट बॉक्स में लिखिए कि अगर 1 घंटे में आपको एक आइडिया मिला, is it a good investment of your time? Say yes or no in the chat box. 1 hour, one idea, but you will use it in your life, practical. Something जो आप यूज करेंगे, ना कहीं थियरी में लिखा. आप सबको मुझे लिखना है yes if you agree with that statement, and then you have to start looking for that idea. मैं जब बात करता हूं, मैं जब आपसे इंटरेक्शन करता हूं, तो आपको वो आइडिया को कैच करने का प्रयत्न करना है. That is your responsibility. I want more yeses. One idea, 1 hour, 45 minutes to 1 hour we are together. 4:30 we will stop. Okay, after that we will not continue. So the point I'm trying to make is, दुग्गल जी ने जैसा कहा, अपने माननीय प्रधानमंत्री भी 4:30 बजे अगर उनका स्पीच दे रहे हैं तो वो हमें चैनल्स पे बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलेगी. इसलिए आप जरूर पूरा मन और तन लेके यहाँ शामिल होइए. नाउ शुरू में ही मैं कहता हूँ, एक क्या कोविड-19 की जो परिस्थिति है उसके लिए मैं एक अर्ज करता हूं कि मुसीबत आने से शरीफों की शराफत कम नहीं होती. मुसीबत आने से शरीफों की शराफत कम नहीं होती. सोने के 100 टुकड़े कर दो, सोने की कीमत कम नहीं होती. आप तो यही प्रोफेशन में हो तो आप तो अच्छी तरह से पहचानोगे कि भाई सोने की. थैंक यू मिस्टर दुग्गल. सोने की कीमत कम नहीं होती है. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आवर प्रोफेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आवर गोल्ड एंड डायमंड्स. आई एम टॉकिंग दैट वी ऑल आर सोना, वी ऑल आर गोल्ड, वी ऑल आर डायमंड्स आवरसेल्व्स. एंड अगर ये कोई मुसीबत आ गई और वो मुसीबत से वी आर नॉट गोइंग टू बी डिसहार्टेंड, वी आर गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट, वी आर गोइंग टू बी करेजियस and unleash our potential in turbulent times. भले टाइम्स खराब हो अभी, लेकिन अब अगर तैयारी हम करेंगे तो कुछ महीनों में हम इसके बाहर हम आ सकेंगे. कोई लोग हमें बोलते हैं कि भाई नेक्स्ट पैंडेमिक की तैयारी कभी करनी चाहिए, तो मैं तो बोल रहा हूँ नेक्स्ट पैंडेमिक की तैयारी आज से शुरू होनी चाहिए. इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कभी पैंडेमिक कभी अभी वापस आ सकता है. हम देखो तो हर एक स्पैन ऑफ पीरियड, पहले 100 साल था, फिर 50 साल, फिर सार्स आया, फिर ये आया. अभी मानो कोरोना जाने के बाद 1-2 साल के बाद और कुछ आ सकता है, पता नहीं है. तो पूरी तैयारी मन तन और हमारे धंधे में भी अभी से कर चाहिए, वो बहुत जरूरी है. तो क्या क्या हमें करना चाहिए? पहली बात तो मैं कहता हूँ, थोड़ा बहुत उन्होंने शेयरिंग किया, तो मैं बोलता हूँ कि हमेशा वी शुड बी अ लर्नर. एनीवन हु स्टॉप्स लर्निंग इज ओल्ड. 20 और 80 हेनरी फोर्ड ने कहा था. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young.
एक चीज मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि हमारे डायमंड ज्वेलरी में लोग ज्यादा या गोल्ड ज्वेलरी में ज्यादा लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं करते हैं। एंड आई डू नॉट माइंड, आप कॉलेज और स्कूल में मत जाओ, ज्यादातर एजुकेशन MBA PhD नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन लाइफ इज अ यूनिवर्सिटी विदाउट वॉल्स। आपकी जो जिंदगी है वो एक पाठशाला है जिसमें कोई दीवारें नहीं है, और इसमें अगर आप अच्छी तरह से ऑल द टाइम एक लर्निंग एटीट्यूड रखोगे तो आप देखोगे कि दूसरे से आप आगे निकल जाओगे। तो little bit about me, although it has been said, it's part of my presentation, so very quickly कि MBA तो मैंने किया, लेकिन मेरी खुद की बिगर डिग्री मैंने खुद को दी है, वो LLL है, और LLL का मतलब हुआ लाइफ लॉन्ग लर्नर। मैं हर एक वेबिनार करता हूँ, हर एक सेशन करता हूँ, उसमें मैं भी कुछ ना कुछ सीखता हूँ। अभी आज अशोक जी और दुग्गल जी ने कहा थोड़ा बहुत हिंदी में, अभी तक मेरे मैक्सिमम वेबिनार्स होते थे इंग्लिश में, तो मैं कभी ना नहीं कहता, लास्ट मिनट पे भी चेंज करके चलो भाई 50% हिंदी भी डालेंगे। वो एक कॉन्फिडेंस हमें हर एक क्षेत्र में होना चाहिए, और जिसकी वजह से मुझे वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। हमारे 900 ऑर्गेनाइजेशंस है क्लाइंट्स, आपकी इंडस्ट्री में भी, जैसे कि कामा शेटर करके है, ददा डायमंड्स है, हरि कृष्णा एक्सपोर्ट्स है, ये सब लोगों ने कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं। आप देखेंगे कि दुबई में, सिंगापुर में एक कार्टियर कंपनी है, उसने भी हमारे फ्रेंच कंपनी सिंगापुर में मैंने प्रोग्राम उनके लिए किया था। लर्निंग पैनोरमा, मिस्टर नारायण मूर्ति वगैरह के साथ मेरा इंटरव्यूज यहाँ हुआ था। और ये है वो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिसके बारे में मिस्टर दुग्गल ने या मिस्टर अशोक भाई ने भी कहा था कि 51 फ्लैग्स आप देख रहे हैं, दूसरे 50 फ्लैग्स नहीं दिख रहे, 105 कंट्रीज थे। तो ये मेरा अवार्ड नहीं है, हम सब भारतीय है, ये इंडिया का अवार्ड है, और मैं आप सबको वो अर्पित करता हूँ कि दिस इज योर अवार्ड, नॉट माय अवार्ड। एंड if you look at it, we got honored also at the HR and Training Company of the Year, क्योंकि हमें 120 टॉपिक्स पे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं हमारे 900 क्लाइंट्स के लिए। ये जो मैं बता रहा था, आप कार्टियर का लोगो देख रहे हो, राइट? बाकी तो DHL और ब्रिटिश गैस, आप टॉप कंपनीज के नाम देखो, HSBC, ये सब हमारे क्लाइंट्स हैं। डिलॉइट, L&T, पेप्सी, जॉनसन एंड जॉनसन, डाउ केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स में सैंडोज, फाइजर और काफी ये सब के बारे में लोगोज इसलिए है कि हर एक के लिए हमने बहुत काम किया है। आपकी इंडस्ट्री में मैंने बताया 3-4 नाम, लेकिन लिमिटेड वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट इतना आपकी इंडस्ट्रीज में नहीं है जितना ये सब में है। और मैं मानता हूं कि आज के सेशन के बाद आप जिनको भी कुछ लगे कि नहीं भाई मुझे निखिल देसाई से और कुछ सीखना है, तो मैं थोड़ी देर के बाद मेरे चैट में मेरा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर लिखूंगा, आप जरूर संपर्क करके कुछ आगे सीखते रहिए। बिजनेस एक्सीलेंस के लिए क्या जरूरी है? एक है लीडरशिप, और जैक वेल्च ने बहुत अच्छा कहा था कि लीडरशिप में 4 E's है और 1 P है। तो 4 E's यानी एक तो एनर्जी चाहिए, हमारी खुद की अगर एनर्जी हाई है, लोग हमें बोलते हैं कि निखिल देसाई आप इतने सालों से करते हैं लेकिन हर टाइम आपकी एनर्जी इतनी हाई कैसे रखते हो? तो वो जरूरी है जिससे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी एनर्जाइज हम कर सके। इसलिए आप जो ऑफिस में काम करते हो या ओन करते हो, तो मेक श्योर कि आपकी एनर्जी अच्छी रहती है, आपके लोगों की एनर्जी भी अच्छी रखिए, खास करके ये टाइम में जहाँ डीमोटिवेशन बहुत कॉमन हो गया है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात कि भाई हमें एक कंपेटिटिव एज और एक जीतने की चाहत रखनी है। ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ ना कुछ करें रोज, जिससे हमारी जीतने की चाह ना मर जाए, भले थोड़ा लेट हो। हमारे जीत तुरंत अभी नहीं आएगी इसमें, लेकिन हारना भी नहीं है। और फाइनली एग्जीक्यूशन, कि हमें रिजल्ट्स ओरिएंटेड रहना है, सिर्फ एक्टिविटी नहीं करना है, हमें इतने टाइम में क्या रिजल्ट्स पाना है वो जरूरी है। और फाइनली पैशन, पैशन का मतलब क्या? एक लगाव, जीवन के बारे में, हमारे काम के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में, हमारी सोसाइटी के बारे में, ये लगाव होना बहुत जरूरी है।
जैक वेल्स ने कहा था कि अगर ये 4 E's और 1 P है तो फिर आदमी जरूर सक्सेसफुल हो सकता है। फिर कस्टमर फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज हमारे जो बिजनेस में है वो कस्टमर इज किंग वैसे हम मानते हैं, और कस्टमर इज किंग अगर है तो कस्टमर का कैसे ध्यान रखे। और कस्टमर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल कस्टमर, एक होते हैं एक्सटर्नल कस्टमर। तो इंटरनल कस्टमर यानी आपके खुद के ऑफिस में लोग जो काम कर रहे हैं वो भी आपके कस्टमर है। अगर आप उनके लिए अच्छी तरह से उनको सेवा नहीं देंगे, भले आप बॉस हो या मैनेजर हो, तो वो लोग उनका काम अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। वो ध्यान भी हमें रखना है। और दूसरी बात ऑफ कोर्स एक्सटर्नल कस्टमर, जिसके बिना तो हमारा बिजनेस एग्जिस्ट होगा ही नहीं। हमने देखा था कि एक कंपनी थी और उसका नाम था नोकिया, और नोकिया एक जब फोन की इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम था, लेकिन हुआ क्या, आज वो फोन की इंडस्ट्री में फोन इंस्ट्रूमेंट्स में उनका नाम बहुत ही नीचे है। उसका कारण कि उन्होंने कस्टमर को सुना नहीं। कस्टमर का वो नंबर 1 थे, उसके उनको लगा कि भाई चलेगा। कोडैक कंपनी को क्या हुआ, नंबर 1 थे फिल्म्स में, राइट। कहीं भी आप देखो, पिक्चर में आप जाओ तो दिस फिल्म इज मेड ऑन कोडैक फिल्म, ऐसे करके हमेशा आता था। आज क्या हो गया, एक दुनिया बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, और उन्होंने इतना काम नहीं किया। तो कोडैक कंपनी ने मुझे 2 महीने कोविड के पहले 3 महीने पहले उनकी इंडिया ऑपरेशंस के लिए मुझे बुलाया, और मुझे वो कहा कि भाई आप हमें मोटिवेशन दीजिए, जिससे तो उनके 60 लोगों इंडिया में मेरे मोटिवेशनल प्रोग्राम अटेंड किए कि भाई हमें, और उन्होंने तय किया है कि आप दूसरे 2-3 साल में कोडैक कंपनी इंडिया में वापस कई ऊंचे स्तर पर आ जाएगी। फिर हमें देखना है कि हमारी सॉफ्ट स्किल्स क्या है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा था कि 85% ऑफ अ पर्सन सक्सेस एट वर्क इज ड्यू टू सॉफ्ट स्किल्स, ओनली 15% ड्यू टू टेक्निकल स्किल्स और फंक्शनल स्किल्स। और मैं चाहता हूं कि आप चैट बॉक्स में लिखिए, आपको क्या लगता है सॉफ्ट स्किल का मीनिंग क्या है। आप लिखिए, आप लिखिए सॉफ्ट स्किल का नाम लिखिए, कौन सी सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए आप में, कौन सी सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, आपको जो लगे। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब आप समझते हो तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब क्या है, आप लिखिए। हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो। हिंदी बेस्ट। सॉफ्ट स्किल्स इज कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत बढ़िया तरुण जैन। टू बी हम्बल, बहुत बढ़िया मनदीप। के दुग्गल जी ने लिखा है कि कम्युनिकेशन स्किल, और क्या, नॉट श्योर, ओके कम्युनिकेशन स्किल, और क्या लिखिए। भले सोचो, चाहिए तो आपके प्रोफेसर गूगल की मदद लो, लेकिन ये सीखना है हमें, साथ में सीखना है। अगर 85% हमारा सक्सेस वहां से है तो आप लिखिए, गूगल से तपास करके लिखिए, आई डोंट माइंड, डजंट मैटर। इंटरैक्टिव नीलम कहती है, बिहेवियर हाउ टू डील विद पीपल, बीइंग पोलाइट विद क्लाइंट्स, पर्सनल इंटरैक्शन एंड टच, वेरी गुड वेरी गुड। और क्या सॉफ्ट स्किल्स है, अगर हमारे जीवन का, पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन का 85% सक्सेस सॉफ्ट स्किल्स के है, तो हमें जरूर हाउ टू सेल, वेरी गुड, कोऑपरेटिव। और 1 मिनट दे रहा हूं मैं, कहाँ आप चाहे तो प्रोफेसर गूगल आपका फोन में चेक करियो, आई डोंट माइंड, आई वांट सम आंसर्स, गिविंग यू, आई वांट 5 more आंसर। वेरी गुड नीलम, वर्क एज अ टीम, शिवाली, फ्लेक्सिबिलिटी, वेरी गुड। Soft skills is a tool which give best service in professional life. Very good, Smita. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और बोलते जाओ, और बोलते जाओ। Problem solving is a soft skill. Very good. Sales are dependent on soft skills. But what are soft skills? What are soft skills? Yes, go ahead. Very good. Transformative, innovative. मैं आपको कुछ नाम देता हूं क्योंकि मैंने ये सॉफ्ट स्किल के ऊपर 28 साल से काम किया है, और मेरे मन में अगर मैं बोलूं कि 5
पावरफुल सॉफ्ट स्किल्स जो जरूरी है आज के जीवन में, तो मैं उसका शॉर्ट कोड आपको देता हूं। और पहली बात, इन एनी ऑर्डर, ECS। अच्छा, मैं पूरा ही लिख देता हूं, चलो। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी ECS, मैं उसका शॉर्ट फॉर्म देता हूं ECS, ठीक है। फिर है हमारा एक प्रोग्राम है, उसका नाम है मास्टरिंग टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सॉफ्ट स्किल, उसका शॉर्ट कोड हम देते हैं MTM। फिर हमारा एक प्रोग्राम है स्ट्रेस मैनेजमेंट, राइट मैनेजमेंट, तो ये ASM हो गया शॉर्ट फॉर्म। स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। फिर है सेलिंग स्किल्स, जो किसी ने लिखा सेलिंग स्किल्स, और उसका हमारा नाम है SSS। और एक फाइनल आपको देता हूं, वो है प्रेजेंटेशन स्किल्स। जैसे मैं आज एक प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, उसका नाम है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स, EPS। तो ये बहुत जरूरी है माय फ्रेंड्स कि ये 5 कम से कम सॉफ्ट स्किल्स हम पूरा डेवलप करें, जिससे हमारा पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस बढ़ेगा। How many of us would like you to improve your soft skills? If you would like to improve, write I in the chat box. Write I, that means I want to improve. Write I. ये कमिटमेंट मैं लेता हूं आपके सबकॉन्शियस माइंड से कि भाई मुझे ये करना है। मैंने निखिल देसाई को एक वादा किया है कि भाई मेरे ये टाइम है, पैंडेमिक का टाइम है, और ये पैंडेमिक के टाइम में मैं इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे सकता हूँ और टाइम है मेरे पास। बाकी जब हम रूटीन में आ जाएंगे तो ये अलग अलग लर्निंग के लिए हमारे पास न तो वक्त होगा, न तो इंक्लिनेशन होगी, हम धंधे में बिजी हो जाएंगे। इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जिसने भी हाँ कहा है और जिसने भी रियल इंटरेस्ट है कि आपकी लाइफ आप दूसरे लेवल पे लेना चाहते हो, डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। जैसे मैं आई वॉज बोर्न एक हम्बल मिडिल क्लास फैमिली में, मेरे पास न तो कुछ पैसे थे, कुछ नहीं था। आज हमारे पास 3 घर है बॉम्बे में, 3 ऑफिसेस है बॉम्बे में। ये सब कुछ हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ माई सॉफ्ट स्किल लर्निंग। इतनी बड़ी बात मैं आज आपको बता रहा हूँ। हमारी खुद की 8 फैक्ट्रीज थी, अभी मैंने वो इंटरेस्ट बेच दिया मेरी फैक्ट्रीज में से, क्योंकि मुझे ये काम जिंदगी भर करना है। तो मैंने ये व्हाट्सएप, प्लीज डोंट कॉल मी बिकॉज आई मे नॉट बी एबल टू आंसर, मैंने व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी डाला है। जिन लोगों ने आई विश टू इम्प्रूव कहा है, वो आप जरूर व्हाट्सएप में डालिए या ईमेल में डालिए, प्लीज सेंड मी मोर इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। रफी अहमद पूछते हैं व्हाई सॉफ्ट स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। रफी जी, वो रिसर्च जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है वो ये है कि हम टेक्निकल स्किल्स होती है वो हमें काम करना सिखाती है, लेकिन हमारा रियल बिजनेस जो होता है ना, वो पीपल टू पीपल होता है, पीपल टू पीपल, नॉट विथ मशीन्स। और पीपल टू बिजनेस, अगर हम कस्टमर केयर करते हैं, किसकी केयर करते हैं? तो पीपल की। हम बेचते हैं, किसको माल बेचते हैं? मशीन्स को या पीपल को? पीपल को। तो सॉफ्ट स्किल्स हैज एवरीथिंग टू डू with person to person, you as a person to improve and your interaction with other persons to improve. That is what is soft skills. Do you get my answer? If you say yes, I know you have got my answer. Rafi Ahmad, likhiye. Will you write yes? Very good. Let's move on. So if we look at the next point, मैंने एक soft skill का model trademark किया है, V for vision, E for enthusiasm, S for stress mastery, T for time management and trust. और ये सब चीज मैं हमारे जो वेबिनार्स होते हैं, मास्टर क्लासेस होते हैं, उसमें अलग अलग मास्टर क्लासेस में ये सब सिखाता हूँ। ये पूरा सॉफ्ट स्किल का मॉडल है। जिसने ये सॉफ्ट स्किल मॉडल की पढ़ाई अच्छी तरह से की, मास्टरी ले ली, तो उनको जिंदगी में कितना भी तनाव हो, कितना भी डाउन रिसेशन हो, आप टॉप में रहेंगे। और टॉप 10, 20%, 30% लोग के लिए
in any market situation there will always be a demand, there will not be, वो जो कट हो जाएंगे वो नीचे वाले हैं जिसने उनके खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो विजन के बारे में बात करें, विजन है, एक एग्जांपल देता हूं, ये वेस्टर्न इंडिया टेलीफोन कंपनी का एक मेमो था 140 साल पहले कि ये टेलीफोन में बहुत खामियां है और ये हमारे लिए कभी भी एक अच्छा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं बनेगी। तो अगर वैसे जो नॉन विजनरीज थे वैसे रहे तो दुनिया में प्रोग्रेस नहीं होता, उन्नति न होती। लेकिन किसी और ने सोचा कि नहीं भाई, हम तो इसको टेलीफोन को और बढ़िया बनाएंगे और फिर हम पूरी दुनिया एक मुट्ठी में स्मार्टफोन में लोगों को देंगे। तो दिस इज व्हाट फ्रॉम नॉन विजनरी टू विजनरी। आपको आज आपकी कंपनी में, आपकी इंडस्ट्री में भी ऐसी तकलीफें हैं, तो ये तकलीफों अगर हम सोचेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हमें भी सोचना है कि हम ज्यादा कर सकते हैं। टाइम लगेगा, वो कोई मैजिक बुलेट नहीं है, आज आपने बोला और कल हो गया, वैसा सोचेंगे शॉर्टकट तो कुछ नहीं होगा। पहले आप अपने आप में इन्वेस्ट करो, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करो, आपके कस्टमर्स के साथ इंटर रिलेशंस अच्छा बनाओ और आप देखेंगे कि आप हायर हाइट्स पे आप पहुंचेंगे जो दूसरे लोग नहीं पहुंच सकते हैं। आज काफी लोग आ सकते थे इधर, लेकिन कुछ लोगों ने कोई कारण से नहीं आए। कुछ ने सोचा कि भाई लर्निंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ने सोचा कि भाई मेरा दूसरा बिजनेस का काम है, वो बिजनेस तो होता। आप आए हो तो आप कुछ ना कुछ इधर से लेके जाओगे। मुझे आपको पूछना है, और ये थोड़ा 2-3 मिनट आप चैट बॉक्स में बताइए कि 2020 दिसंबर एंड तक आपको क्या पर्सनली और आपकी कंपनी में आपको क्या बंद करना है, क्या स्टॉप करना है, आपको क्या शुरू करना है, आपको क्या कंटिन्यू करना है और आपको क्या कंप्लीट करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि गो टू द चैट और कोई भी एक लिख दीजिए स्टॉप व्हाटएवर। और पर्सनल लेवल पे ये हो सकता है, एग्जांपल दे रहा हूं, स्टॉप स्मोकिंग किसी का हो सकता है, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग किसी का हो सकता है, कंटिन्यू लर्निंग किसी का हो सकता है, कंप्लीट दिस टर्नओवर ऑफ बाय 31 दिसंबर इतना टारगेट रखना है। तो कुछ भी आप लिख सकते हो। आपको 3-4 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लिखिए, आप चैट बॉक्स में लिखिए, आप चैट बॉक्स में लिखिए, लिखिए, लिखिए ऑल द पीपल जो आपके मन में आए। डोंट वरी अबाउट राइट और रॉन्ग आंसर। आपको क्या शुरू करना है, क्या बंद करना है? हेल्थ केयर शुरू करना है। स्टॉप लेजीनेस स्मिता, वेरी गुड, वेरी गुड। आई वांट मोर आंसर्स। कंटिन्यू लर्निंग नीलम, वेरी गुड। व्हाट एल्स? आपके हिसाब से लिखिए, 3-4 मिनट का टाइम दे रहा हूं। लूज वेट प्रियंक, वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या करना है आपको? क्या करना है? आपके गोल्स क्या है? क्या हमें फालतू में टाइम वेस्ट करना है? क्या हमें सिर्फ टीवी देखते रहना है? अनिल सेठ से चैरिटी, वेरी गुड अनिल भाई। और बताइए, और बताइए, और क्या करना है हमें, और क्या करना है? लर्निंग, वांट टू गो डीपर, वेरी गुड। इनोवेटिव, गुड। स्टॉप ब्लेम गेम, बहुत बढ़िया। और अनिल जी, आप स्टॉप मीटिंग मेनी पीपल, यस, नहीं, जरूरत नहीं है तो नहीं मिलना है। स्टार्ट योगा। स्मिता, यू विल बी हैप्पी टू नो मैंने 9 मंथ डिप्लोमा कोर्स किया है योगिक एजुकेशन पे। 9 मंथ डिप्लोमा, आई एम अ क्वालिफाइड पर्सन ऑन दैट फील्ड, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अमनदीप कहते हैं स्टॉप क्रेडिट, स्टार्ट ऑनलाइन, कंटिन्यू एक्सपोर्ट, कंप्लीट सेल्स टारगेट, बहुत ही बढ़िया। अनिल जी कहते हैं मुझे हेल्प बहुत करना है, जरूर। अनिल जी, आप इतना कहते हो तो मैं बताता हूँ, आज आप जैसे लोग मेरे वेबिनार्स लोगों, पेड वेबिनार्स लोगों को गिफ्ट करते हैं, गिफ्ट करते हैं, स्टूडेंट्स को, एम्प्लॉइज को, उनके फ्रेंड्स को, बर्थडे गिफ्ट, एनिवर्सरी गिफ्ट। तो इससे क्या होता है कि उनकी लाइफ बढ़ती है। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग फॉर सोसाइटी। प्रियंक सेज टाइम मैनेजमेंट, वेरी गुड। नो लेजी, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, विच इज माई ड्रीम टू, श्योर। स्टार्ट चेंजिंग योर बिजनेस स्टाइल, यस अशोक भाई, yes Anil ji, I like your thumbs up, absolutely right, so important, very important.
राइट? तो आपने जो लिखा है, स्टार्ट स्टडिंग द सिचुएशन एंड कंटिन्यू वर्किंग। वेरी गुड तरुण जी, राइट? आर यू फ्रॉम दुबई? मैंने लास्ट ईयर 3 प्रोग्राम दुबई में किए, कि कोई मैंने देखा कोई दुबई नाम था, तो 3 प्रोग्राम दुबई में किए लास्ट ईयर, राइट? मेक फ्रेंड्स, यस, व्हाई नॉट? ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑल पॉसिबल, राइट? Today it from Delhi, very good. Stop the workshop, yes, whatever works for you, whatever works for you. Punctuality is important. हमें very good. So let's move on. आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत हम आगे भी जाएंगे, और ये है कि हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। Enthusiasm. Enthusiasm क्या चीज है? Enthusiasm एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। मैं हमेशा कहता हूं, जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आया। जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आया। नशा हर चीज में है, हमें पीना नहीं आया। अगर किसी को अच्छा लगा तो आप बढ़िया डाल सकते हो, क्योंकि ये this is not only to tell you, this is for you to start living, my friends. कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आया। नशा हर चीज में है, हमें पीना नहीं आया। अरे कोविड-19 में भी एक प्रकार का नशा है इन द एटमोस्फियर, जो आप अगर समझो तो बहुत कुछ हो सकता है, राइट? वेरी गुड। तो हमें क्या करना है भाई? स्ट्रेस मास्टरी भी लानी है। ये आजकल तनाव, देखो ये लेडी को जैसे पिक्चर में दिखा रहा है, कोई सिक है, टाइम नहीं है, हेडेक है, बिल के पेमेंट्स करने हैं, काम का प्रेशर है, लेट नाइट हो गई, कुछ डर है, कुछ चिंता है, नींद बराबर नहीं आ रही है, राइट? ओवर टाइम करना पड़ता है। ये सब चीज से तनाव होता है। और मेरे जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, मैं जाता हूँ हेलीकॉप्टर से इंडियन ओशन में, 45 मिनट्स बाय हेलीकॉप्टर। और वहां भी अभी नहीं, ये कोविड सिचुएशन में बंद है, लेकिन उसके पहले तो कंपनीज जहाँ होती है, ONGC है, ब्रिटिश गैस है, वैसे प्लेटफॉर्म्स पे जाके ये प्रोग्राम्स तनाव मुक्ति का भी करता हूँ। स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं, जरूर बढ़ रहे हैं। और क्या होता है जब स्ट्रेस बहुत ऊपर है, तो बहुत नीचे है स्ट्रेस, तो प्रोडक्शन या परफॉर्मेंस कम होता है। थोड़ा तनाव अच्छा है, लेकिन ज्यादा तनाव हो गया तो फिर परफॉर्मेंस और हेल्थ दोनों डिक्लाइन होते हैं। अगर आपने मानो कि आपका तनाव काबू में न रखा, तो मुझे बताइए चैट बॉक्स में आपको क्या नुकसान होगा, लिखिए। अगर आपके तनाव आपने काबू में न रखा, तो चैट बॉक्स में लिखिए आपका नुकसान क्या क्या होगा, बताइए, लिखिए। लिखिए आपका नुकसान क्या क्या होगा। रिलेशनशिप जरूर, हेल्थ द बिगेस्ट लॉस्ट, करेक्ट, नॉट कंपैटिबल, करेक्ट, और क्या होगा? और क्या होगा? तनाव अगर काबू में न रखा तो क्या होगा? वर्किंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। इंडियन परफॉर्म बेस्ट अंडर प्रेशर, मिस्टर दुग्गल, यस, बट प्रेशर की भी कोई लिमिट होती है। हाउ मच प्रेशर? फ्रस्ट्रेशन, मेंटल लॉस, मनी लॉस, हेल्थ लॉस, करेक्ट, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मिसमैनेजमेंट होगा, एनवायरमेंट अनप्लेजेंट हो जाएगा, रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाएंगे, डिप्रेशन आ जाएगा। एब्सोल्युटली, हम देखेंगे कि बहुत डिप्रेशन आ रहा है जिंदगी में, और इंडिया में तो है, लेकिन प्रदेश में देखो तो इवन और बड़ी बड़ी डिप्रेशन की बात हो रही है, राइट? तो आपका सब आंसर सही है। इसका पूरा मैं 4 बकेट में डालूं तो बकेट 1 है प्रोडक्टिविटी कम होगी, बकेट 2 आपकी हेल्थ को तकलीफ होगी, बकेट 3 आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, और बकेट 4 जैसे अनिल भाई ने कहा रिलेशनशिप्स में तनाव आ जाएगा। तो ये बहुत भारी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, और ये भारी कीमत अगर हमें नहीं चुकानी है तो हमें कुछ करना चाहिए।
हमारे एक बहुत बढ़िया सीडी प्रोड्यूस की थी, म्यूजिक फॉर ट्रू रिलैक्सेशन, वो भी हमारी अभी हम लोग ऑनलाइन देते हैं। जिसको इंटरेस्ट हो तो आप म्यूजिक लिख के मुझे जो व्हाट्सएप या ईमेल में डालो, तो हमारी ऑफिस उसके बारे में आपसे संपर्क में रहेगी। बहुत सारे लोग इससे उनको बेनिफिट मिला है। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, और कई लोग कोविड के पहले एक्सरसाइज करते नहीं थे। आजकल कुछ लोग ने चालू किया है, और कुछ लोग अभी ऐसे भी है जो आजकल ये थोड़ा टाइम होने के बावजूद एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग, व्हेन द सन इज शाइनिंग। अगर कोई छेद है तो उसको सही करना है कभी आपके मॉनसून की सीजन में नहीं। तो इसलिए एक्सरसाइज करो जब हेल्थ अच्छी है। जब हेल्थ बुरी होती है तब मुश्किल हो जाएगी। और फिर क्या है, टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट है तो टाइम मैनेजमेंट, अमिताभ मैल्कम फोर्ब्स एक बढ़िया सा इंडस्ट्रियलिस्ट ने, एडिटर ऑफ फोर्ब्स मैगजीन ने कहा था, इफ यूड लाइक to ask me what I would like to buy, it is time. And finally, my friends, T stands for trust in yourself and trust in your team. हमें हमारे आत्मविश्वास को नहीं खोना है, हमारी टीम जो है उसमें भी कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि दैट टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। हमने ये बहुत सुना है, लेकिन मैंने देखा है कि टीम वर्क के साथ मोर नहीं, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मिरेकल्स हो सकता है। एंड इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग टीम वर्क पे अच्छा ध्यान दें। तो हमें क्या करना है, अभी मुझे एक आपसे एक्टिविटी जो करनी है वो एक लाफ्टर की एक्टिविटी है। उसके बाद अगर आपके कोई प्रश्न है तो प्रश्न लेंगे 5 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद हम क्लोज करेंगे। तो मैं लाफ्टर इसलिए करना चाहता हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है, लाफ्टर करना अच्छी बात है, लेकिन हम लाफ्टर कैसे करें? हम लाफ्टर कैसे करें जब हमारा फैमिली में मदर इन लॉ फादर इन लॉ है, उनको अच्छा नहीं लगेगा, बॉस या वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा। अगर हमारी फैमिली मेंबर में प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे नेबर्स में प्रॉब्लम होगा। ऑफिस में थोड़ा हम लाउडली लाफ कर सकते हैं। तो मैंने एक क्रिएट किया है और उसका नाम है साइलेंट लाफ्टर, और मैं आज आपको वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। साइलेंट लाफ्टर एक बार आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, और एक बार डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद मैं आपके साथ हम लोग 5 बार साथ में करेंगे। तो अभी से आपके वीडियोस अगर आपको चालू रखने हैं तो आप रख सकते हो, और मैं आई एम गोइंग टू स्टैंड अप, खड़ा हो जाऊंगा। आपको खड़ा रहना है तो खड़ा रह सकते हो। मैंने ये न्यूयॉर्क के डायमंड मर्चेंट्स के साथ ये लाफ्टर एक्टिविटी सालों पहले बहुत की है। काफी टाइम न्यूयॉर्क गया हूँ प्रोग्राम्स के लिए यूएसए में, और वो काफी डायमंड कंपनीज मैनहट्टन में होती है, उनके साथ उनके घर पे और हमारी प्रोग्राम्स करके हम कर रहे हैं। आप एक बार मेरी देख लीजिए कि लाफ्टर साइलेंट कैसे होता है। आप कीजिए मत। रेडी? ये ऐसा होगा, ब्रीद इन, और ये एक राउंड हुआ, ठीक है। आवाज थोड़ी निकल गई चलेगा, लेकिन आपकी कोशिश ये रहे कि आप आवाज न करें। अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग हो सके तो आपका वीडियो भी चालू रखिए गैलरी मोड पे। अगर होस्ट आप गैलरी मोड पे सबको रख सकते हो तो गैलरी मोड पे रखिए, सो सब लोग एक दूसरे को थोड़ा बहुत कभी कभी देख सकते हैं। राइट, let us keep it in gallery mode and let us start 5 times with me. Your time starts now. The first one. That is one round. Second round. Two, three. Three, four. आंखें बंद, left hand on your chest,
खड़े रहिए अगर आप खड़े हो तो। लेफ्ट हैंड ऑन योर चेस्ट, ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। आपकी हार्ट बीट्स का ऑब्जर्वेशन कीजिए। ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, कंप्लीटली साइलेंट एंड स्टिल। हिलना नहीं है, ये अनुभव करना है। प्राण शक्ति, हमारे शरीर की ऊर्जा को महसूस करना है। जो अच्छा लग रहा है, तन रिलैक्स्ड है, मन एनर्जाइज्ड है, ये क्षण में रह जाइए, ये क्षण को महसूस कीजिए। ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। अभी कैसा आपको लगा लाफ्टर के बाद और आज के सेशन के बाद? आप चैट बॉक्स में डालिए आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, राइट? इफ यू फेल्ट गुड, राइट फेल्ट गुड। इफ यू लाइक, राइट लाइक। आपको जो लिखना है चैट बॉक्स में लिखिए। दिस इज योर टाइम नाउ। इट वॉज गुड। गुड इवनिंग एवरीबडी। अशोक सूरी जी, गुड इवनिंग। गुड। लिखो आपको जो अभी चैट बॉक्स पे not only about the laughter session, even about the whole session. We have been 50 minutes together. 50 minutes together. So you can write, it was fun, very good, felt relaxed, very good, very good. Innovative idea, yes. हर बाथरूम में हम जाते हैं हमारे नहाने के लिए रोज सवेरे, स्नान करने के लिए, उसके साथ लाफ्टर ऐड कर दीजिए, राइट? New thoughts, yes Rafi ji, new thoughts, new ideas, laughing good new idea, yes, yes. तनाव को हमें निकालना है, टाइम को हमें मैनेज करना है, और जैसे मैंने कहा डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ये अगर आपको और ऊंडाई में जाना है तो मैंने कहा तो बेस्ट थिंग इज टू सेंड email or WhatsApp, because some people have come late. I think I am just putting for their benefit this email ID which I see on my phone or WhatsApp. This is the WhatsApp number. आपको आपकी जीवन को दूसरे लेवल पे लेके जाना है। हो गया 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, एक प्रकार से हम जिए। अगर मेरे ओल्डेस्ट पार्टिसिपेंट वाज 85 years old, oldest ever, और that participant 85 years old, ये बिफोर कोरोना मुझे मेरे प्रोग्राम के बाद गले लग गए और बोले निखिल जी आपने मेरा लाइफ चेंज कर दिया ये साल में। 85 years old। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि डू नॉट थिंक एज। आप कोई मेरे ख्याल से ये ऑडियंस में 85 years old नहीं है, 85 से कम है। मन में रखिए कि हमें सीखते रहना है। जिंदगी जिनको लगता है कि हमने सब कुछ सीख लिया है वो कल की दुनिया में जी रहे हैं। जिसको लगे नहीं हमें नया कुछ सीखना है वो आने वाली दुनिया में जीना चाहते हैं, और वही दुनिया में पावर है। कल की दुनिया में कुछ नहीं है, ये समझ के आप जरूर लर्निंग का एटीट्यूड कायम रखें। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो मैं अभी ले सकता हूं, अगर हो तो। अगर बहुत हमने कवर किया है, कुछ ना हो तो फाइनली आपके इट वाज गुड एक्सपीरियंस, ब्रस्ट ऑफ नॉलेज नरेंद्र जी, इट विल हेल्प अस अ लॉट। थैंक यू फॉर योर कमेंट। आपके कमेंट्स भी लिख सकते हो, आपके प्रश्न भी लिख सकते हो। आपने जो 50 मिनट्स में, जो 55 मिनट्स में जो भी समझा जाना, वंडरफुल सेशन। थैंक यू नीलम। आप लिखो, क्योंकि जब सोचते हो ना, हमारा परमानेंट लर्निंग कब होता है? जब हमने कुछ पढ़ा, सुना, उसके बारे में मनन किया, इमीडिएटली मनन किया कि क्या हुआ, मैंने ये एक घंटे में क्या। मैंने सबको कहा था कि वन पॉइंट यू लुक फॉर, वन पॉइंट, ये पूरे एक घंटे में वन पॉइंट। एंड आई एम श्योर पीपल लाइक नीलम, नरेंद्र जी, all these and all of you have picked more than one point, right? Whatever that point was,
belief in yourself, felt good to be with you. So whatever is your point, feel it. हम हमारी जब अनुभव एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारे अनुभव फिर कायम हमारे साथ रहते हैं. अनुभव एक्सप्रेस करना हमारे एक इंडिया में एक थोड़ा सा कभी कभी कमी होती है कि हम एक्सप्रेशन में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते. हम हमारे सब चीज हमारे दिमाग के अंदर रखते हैं, हमारे मन के अंदर रखते हैं, लेकिन वी हैव टू बी एक्सप्रेसिव. आज अमेरिका अभी इतना आगे नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने का एक कारण वही है कि दे आर वेरी एक्सप्रेसिव पीपल, दे आर वेरी मार्केटिंग. थैंक यू अनिल जी, थैंक यू अनिल जी. विजन इज मोर इम्पोर्टेंट. एब्सोल्युटली, अगर विजन है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल. और विजन होना है अनलिमिटेड विजन. आज थोड़ी तकलीफ आ गई, विजन मर गया, नहीं. विजन अटूट है, वो कभी नहीं मरता है, हमें उसको जीवित रखना है. That is what will make a difference in people's lives. Somebody had said, what is the size of the sky? Different answers people gave. But I gave an answer saying the size of the sky depends on the size of the window through which you're looking at the sky. अगर आपकी विंडो ही छोटी है तो आपको सब छोटा ही दिखेगा. आपको वो विंडो को बढ़ाना है. आप बिल्डिंग में हो तो आप आपके टेरेस में जाएंगे तो और दिखेगा. आप छोटे 5 फ्लोर के बिल्डिंग में हो, आप 25 माल पे जाओगे और उसके टेरेस पे जाओगे, आपको और दिखेगा. तो ये एक्सपेंशन, ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन लाइफ इज फॉर एक्सपेंशन, नॉट कॉन्ट्रैक्शन. हमने बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमारी गलत सोच से, हमारी नेगेटिविटी से, हमारी कई कारणों से हमारी लाइफ को हमने कॉन्ट्रैक्ट किया. मेरी रिक्वेस्ट है, ये टॉपिक का नाम है अनलीशिंग योर पोटेंशियल इन यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन. उसको हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक्सपैंड करना है, अनलीश करना है. और जब आप अनलीश करोगे तो लाइफ में एक मजा आ जाएगी, एक मस्ती आ जाएगी, और मस्ती ही जीवन है. हम लोग कई बार, आज मैं मानता हूं कि 10 में से 9 लोग जीते नहीं हैं, सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं. सोना, खाना, पीना, फिनिश. एक मन में एक तरंग और उमंग नहीं है. सवेरे उठ के मुझे चलो आज दूसरे 24 घंटे है, कितना मजे का काम करना है, वैसी एक भावना नहीं है. उठना है इसलिए उठते हैं, काम करना है इसलिए काम करते हैं, खाना खाना इसलिए खाना खाते हैं, कुछ कसरत करनी इसलिए व्यायाम करते हैं. लेकिन दिल से करने वाले, मैं मानता हूं कि 10 में से 1 से ज्यादा लोग नहीं है. 100 में से 10 से ज्यादा लोग दिल से ये सब नहीं करते. और जब वो चेंज हो जाएगा, और वो मेरा वो ही मकसद है कि वो जगाए मेरे प्रोग्राम से हमेशा, जो आपको लगे नहीं मैं मेरे लिए कुछ किया, और वो मेरे लिए करने में दूसरों को भी बहुत फायदा हुआ. आप अच्छे बनोगे तो आपकी फैमिली को फायदा होगा, आपके कंपनी को फायदा होगा, आपकी सिटी को, आपकी सोसाइटी को, देश को, दुनिया को फायदा होगा. और ये बहुत जरूरी है. हम ऐसा सोचेंगे कि बस मैंने मेरे लिए पैसा कमा लिया, मेरे लिए ये कर लिया, मेरा सब कुछ है. जरूरी है कितने हद तक. एक जीरो के बाद अगर इतने भी जीरो है और ये जीरो के बाद और एक जीरो ऐड करो, क्या फर्क पड़ेगा. 2 जीरो ऐड करो, क्या फर्क पड़ेगा. कुछ लेवल के बाद पैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों में बदलाव लाए. पैसे भले आए, मैं भी मेरे प्रोग्राम्स के पैसे चार्ज करता हूं, और चार्ज इसलिए करता हूं ना कि मुझे उसकी जरूरत है पैसे की, लेकिन जब पैसे लोग देते हैं, कुछ फीस पेड की है, तो उनका ध्यान, एनर्जी ज्यादा अच्छी रहती है. चलो अभी 4:26 हो गए. मैंने प्रॉमिस किया था 4:30 के पहले हम स्टॉप करेंगे. 1 घंटा हो गया. अभी ओवर टू यू माय फ्रेंड्स. दुग्गल जी एंड अशोक जी, आपको जो कहना है आप कह दीजिए. नमस्कार, नमस्ते. Thank you, Nikhil ji. It was indeed a very innovative, very changed webinar which we have
been attending so far. A very useful one, I think. Everyone seems to have benefited, and for the first time I saw it as a very participative program. Almost everyone had something or the other to say and write something in the chat box, which is very, very good that it was keeping everybody involved in whatever you were saying. And I think आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हर किसी को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है, चाहे वो 85 years का हो, चाहे वो 8 years का हो. He has to keep on learning every day. We all should come with an open mind and be ready and be prepared to learn. And as long as we are learning, we will remain young and we will keep improving ourselves and giving more to the organization or to the society. एक और बात आपने जो बड़ी अच्छी कही वो ये थी कि आप जब लर्न करेंगे और जब नई नई चीजें सीखते रहेंगे तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना यूजफुल होंगे कि कैसा भी चैलेंजिंग टाइम आए, कैसा भी डिप्रेसिंग टाइम आए, nobody will get rid of you. You will become useful. तो इन अ वे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री तो जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री है, तो मेरे को लगा कि जैसे डायमंड्स के बड़े फेसेट्स होते हैं, ऐसे ही हमको भी मल्टी फेसेटेड होना चाहिए, मल्टी यूजफुल होना चाहिए, so that we remain so useful for the employer, for our organization, that he dare not think. I am not saying he thinks, he dare not think to get rid of us. ये हमारा, और लर्निंग करते रहेंगे तो ऐसा ही होगा. It will be their loss, not yours. It will be their loss. Yes, he will dare not think. आप इतने यूजफुल हो, इतने मल्टी फेसेटेड हो, डायमंड हो, कि आपको उसकी हिम्मत ही ना हो, सोच ही ना सके, वो सोच ना पाए कि आपके बिना कैसे उसका काम चले. तो थैंकफुल, आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया. I would request all participants, if they have any question, let them please. Mr. Nikhil Bhai is here. We have had the pleasure of him. Let us listen from him a few more points if you want any clarification or you have any doubt or any suggestion. Please, if you want, you can share. I think you can write in the chat box and I will write for you. No. I think what we will do is I have shared and interacted, and we have covered a lot of ground. There, my sessions में question answer at the end नहीं होता है, वो साथ में हो जाता है. And because I have said that 4:30 we want to, I think let us keep our time. It is 4:29, right? Let us say our goodbyes. अगर कोई screenshot लेना है, सब लोग है, उसका कोई screenshot किसी को लेना है, वो ले लीजिए. और मैंने मोबाइल नंबर और वो WhatsApp email ID दिया है, किसी को कोई प्रश्न हो या comment हो तो उसमें डाल सकते हैं. Will that be a better idea? So that we keep our promise. 4:30 we are closed. 1 minute here or there. Otherwise, क्या होता है? Answers can go into any limit. Yeah. Thank you, Desai sir, for giving time and for coming and sharing your thoughts with us, and making it more lively for us. We are really grateful to you, and thanks again on behalf of all the participants, on my own behalf, and on behalf of the Gem and Jewelry Council. Thank you. Sir, साहब आप कुछ कहते हैं एक मिनट? हाँ. सर, अपना आज जो ये मोटिवेशन मिली है आपसे निखिल जी, तो बहुत मेरा ख्याल है, जो मैं लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ, they are much more impressive and they are very happy. तो अगर प्रभु ने चाहा तो फिर दोबारा आपसे मिलने का मौका मिलेगा, फिर दोबारा बैठ के बातचीत करेंगे. आपका आ जाने का बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे सभी साथियों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ. धन्यवाद. Bye bye everybody. Bye. Bye.